Now let's talk about the prime numbers and composite numbers. What are prime numbers? Prime numbers are the numbers which are having exactly two different factors. Exactly two different factors. That means if you factors मतलब क्या? Factors मतलब divisor. Factors, divisor, both of them are same. Divisors or factors means a number which can divide given number. For example, if you say 6, okay. Now, what are the factors of 6 or what are the divisors for 6? So, 6 is divisible by 2, obviously 1, 3 and 6 itself. So, how many factors or divisors 6 has? 4 of them, right? Now, for a number to be a prime number, it should have exactly two divisors. Exactly two, ना तो 2 से ज़्यादा, ना 2 से कम. Okay? That's why if you take any number, let's say 29 here. So 29 is divisible by either 29 or it is divisible by 1. It's not divisible by any third number. Okay? And also, that is why we say 1 is not a prime number. Why it is not a prime number? Arey, the people give definition like what? Sir, number which is divisible by 1 in itself. Arey, 1 in itself, so 1 is divisible by 1 and itself. But is it a prime number? No. How do you define a prime number? A number which has exactly two distinct factors. Exactly two. Not less than 2, not more than 2. Okay? They are the prime number. Prime numbers which are not divisible by anything other than 2 and itself is okay if you want to define it this way. But you have to remember, you need to understand that 1 is not a prime number. Okay? Because this is the exact definition of prime number. Now, ये कुछ examples हैं 2, 3, 5, 7, 11 they are the prime numbers. Prime numbers and odd numbers में confuse मत होना हाँ. Odd numbers are different and prime numbers are different. Odd numbers are numbers which are not divisible by 2. Okay, it may be divisible by something else. Prime numbers are the numbers which are having exactly two different factors. One and itself. Okay, exactly two different factors. Right? So I hope this you know already, and even if you don't, now you know it. Okay. Composite number क्या होता है? जैसे even का opposite odd, वैसे prime का opposite composite. Okay. So composite numbers, as the name says, composite. It's made with composition of two or more than two numbers. Okay. For example, 6. 6 is a composite number. 6 is composite number. It is 2 into 3. A number which is divisible by other than itself and 1. A number which is divisible by other than itself and 1. Okay. The number which has more than two distinct factors. Factors को एक नया word होगा. It will be a new word to you, new term to you. Don't worry. It's easy. Factor is nothing but divisor, and divisor and divisor is what? A number which divides. Doctor, divisor, yeah, number which divides, right? Operator which operates, divisor which divide. Okay. Yeah. So that is divisor, division. ठीक है. I hope this is clear. बहुत difficult है नहीं ना? Easy ना? Okay. Now points which you need to note here. One is neither a prime number nor a composite number, because to be a prime number you need number to have exactly two divisors, right? To be a composite number you need numbers to have more than two divisors. So one के साथ ऐसा कुछ case है ही नहीं. One has only one divisor, that is one itself, right? 2 is the only even prime number. हमेशा ध्यान रखना. 2 is the only even prime number. Okay. There are 25 prime numbers less than 10, less than 100. So 1 to 100 if you count, there are total 25 prime numbers. ये हमें याद रखने की चीज़ है. ये याद रखने की चीज़ है because I think back in 2004, 5, ऐसा कुछ 9, ऐसे कुछ year में CAT exam में there was a question on number of factors where it can be solved easily if you know how many prime numbers are there which are less than 1. Okay. So or how many two digits prime numbers are there. उस concept से वो question बहुत easily solve हो गया था. तो this is one point which you should keep in mind. क्या point है? There are 25 prime numbers less than 100. Okay. अच्छा हाँ, ये चलो पूछता हूँ मैं आपसे, आप लोगों से पूछता हूँ, बताओ मुझे. Tell me, how many two-digit prime numbers are there? Now, if you know that there are 25 prime numbers less than 100,
So how many 2 digits prime numbers are there? How many 2 digits prime numbers are there? How many 2 digits prime numbers are there? कितने 2 digits prime numbers है बताओ? कितने होंगे? Obviously you have 2, 3, 5, 7. They are single digit prime number. And when you say 1 से लेके 100 तक there are 25 prime numbers. 25 prime numbers. अच्छा सिंगल डिजिट वाले कितने प्राइम नंबर्स हो गए? 4 प्राइम नंबर्स. सिंगल डिजिट वाले कितने हो गए? 4 प्राइम नंबर्स. सो बताओ 2 डिजिट्स वाले कितने हो जाएंगे? टेल मी हाउ मेनी 2 डिजिट्स प्राइम नंबर विल बी देयर? How many 2 digits prime number will be there? You will say 21 prime numbers. Are you getting this? Okay. Okay. So this is good to remember. Prime numbers greater than 3 are in form of 6n plus minus 1. Okay. So prime numbers are usually in form of 6n plus minus 1. ऐसे उसको उनको if you see the characteristics, you can define them like 6n plus minus 1. Yeah. And yes, if itna bolta, not all the numbers which are in form of 6n plus minus 1 are prime number, but prime numbers more than 3 are in form of 6n plus minus 1. एक सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है, समझना इस बात को. जैसे if I say 6n plus minus 1, that means number will be either 1 more than multiple of 6 or 1 less than multiple of 6. ये एक प्राइम नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये एक प्राइम नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके. But every number which is in form of 6n plus minus 1 is not necessary to be prime. Okay. Let me show you. Let me show you with the Venn diagram. Venn diagram आपको याद है? Venn diagram हम लोगों ने modern maths में किया है. So if you see this circle represents 6n plus minus 1. उसके बीच में क्या होगा आपका? ऐसा उसके अंदर क्या होगा? You will have prime numbers. So you can say every prime number is in form of 6n plus minus 1. ये ग्रीन वाला जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर्स विच आर इन फॉर्म ऑफ 6n plus minus 1. What do you mean by 6n plus minus 1? It means it will be either 1 more than multiple of 6 like 13 or 1 less than multiple of 6 like 29. Okay. So prime numbers are in form of 6n plus minus 1, but all the numbers which are sorry, but all the numbers which are in form of 6n plus minus 1 are not necessary to be prime number. वहाँ पे कुछ नॉन प्राइम भी मिलेंगे. जैसे if I say 6 6 36 माइनस 1 करोगे तो कितना मिलेगा? 35. इस 35 प्राइम नंबर? नो. तो ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ. ठीक है. एक एग्जाम्पल जैसे मैं देता हूँ. All birds fly. All birds fly. But everything which flies are not birds. Everything which flies not necessary to be birds. Yeah, like aeroplane. Aeroplane flies, but it's not bird. Are you getting it? So, लेकिन bird आप बोल सकते हैं every all birds fly. Exceptions है मुझे पता है. अभी आप उसको उसमें मत घुसना exceptions और ऐसे भी तो कुछ birds हैं जो fly नहीं करते. Don't get it. मतलब एक general just to make you understand the relationship between numbers which are in form of 6n plus minus 1 and prime number. Okay. हालांकि मुझे लगता है आपको ये वेन डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर्स आर सबसेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर इन फॉर्म ऑफ 6n plus minus 1. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि you get a situation where you need to find out if the given number is prime number or not. So first test you need to apply is 6n plus minus 1. Is it 1 more or 1 less than मल्टीपल ऑफ 6? पहला चेक ये होगा. अगर वो चेक हो जाता है मतलब एक चेक पास किया. सेकंड चेक क्या होगा? डू यू हैव एनी अदर नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर? अब वो चेक हम लोग कैसे क्लियर करेंगे? लेट मी शो इट टू यू. सो हियर फाइंड आउट इफ द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर. सो आपके लिए यहाँ पे दो चेक है. पहला चेक क्या? पहला चेक क्या है? सी इफ द नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 6n plus minus 1. राइट. सेकेंड चेक क्या होगा? ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना. सेकेंड चेक क्या होगा? आप वो नंबर लो. लेट्स से द नंबर इज x. उस नंबर का अप्रोक्सीमेट रूट निकालो. इंटीजर फॉर्म में रूट निकालो. ओके. लेट्स से इट्स y. ओके. आई विल गिव यू एग्जांपल. आई विल सॉल्व फॉर कपल ऑफ नंबर्स एंड शो इट टू यू. बट ये समझो y. नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल चेक फ्रॉम 1 to y. You will take all prime numbers, I would say,
and you take those prime numbers and divide x by that. Okay, इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना. आई एम नॉट सेइंग x डिवाइड बाय 1 माइनस y, ऐसा नहीं बोल रहा मैं. 1 to y, 1 से लेके y तक, टेक ऑल द प्राइम नंबर्स एंड ट्राई see if x is divisible by either one of them. If that's working, if it is divisible, then it is not prime. If it is not divisible, then it is prime. So आपके पास दो चेक है. चेक नंबर 1 क्या? अगर ये चेक पास किया तो उसके प्राइम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अगर ये भी चेक पास किया तो ये डेफिनेटली प्राइम नंबर है. ओके, अगर यही चेक पास नहीं किया, अगर यही चेक पास नहीं किया, तो यू डोंट हैव टू चेक फॉर द, यू डोंट हैव टू अप्लाई द सेकंड चेक. आर यू गेटिंग दिस? ओके, नाउ लेट्स टेक अ नंबर. लेट्स टेक अ नंबर. लेट्स टेक अ नंबर से क्या नंबर है? 129. चलो 1 नहीं, वो तो 3 शेड्यूल ऐसे दिख ही रहा है. 131 लेते हैं. चलो 131. ओके, 131. Okay, let's take a number 131 and see whether 131 is a prime number or not. So पहला check क्या होगा? You will check if you divide this by 6, do you get remainder or do you get one extra or one less? One less मतलब क्या? 6 से 1 less मतलब क्या हो जाएगा? 5. Okay. So if 131, if you divide by 6, what do you get here? 6 2s are 12 and then you get 1 1 and then you get say what? 6 1s are 6. तो बचा कितना यहाँ पे? 5. So 5 is what? 1 less. 5 is what? 1 less than 6. मतलब आप क्या बोल सकते हो? This 131 is nothing but, एक बढ़ा दो, 6 into 22. 6 into 22 minus 1. राइट. आप ये भी बोल सकते हो कि 6 into 21, है ना? ऐसे ही इतना तो आता होगा यार. बताऊं क्या? देखो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं अब? इफ यू राइट इन द डिवीजन फॉर्मेट, इन डिवीजन फ्रेम, व्हाट विल यू कॉल दिस 131? 131 इज डिविडेंड, 6 इज डिवाइजर, 21 इज क्वोशिएंट, 5 इज रिमाइंडर. सो व्हाट डू वी से? अ डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, so with that relation you can also say 6 into 21 plus 5. ठीक है, तो 6n plus 1 का मतलब क्या हुआ? when you divide by 6 it should leave remainder 1. 6n minus 1 का मतलब क्या हुआ? when you divide the number by 6 it should leave remainder what? It should leave remainder what? It should leave remainder what? 5. Okay, ध्यान रखना. इसका मतलब क्या हुआ? when you divide the given number by 6 it should leave remainder what? 1. Okay, ये दोनों हमें ध्यान रखना. कुछ confusion here? All good, right? चलो, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है. Okay, so now we are not done here. We are not done here. यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि it is passing check 1. check 1 क्या था? check 1 था 6n plus minus 1 का. So it is in form of 6n minus 1 because it is leaving remainder how much? 5. पहला चेक हो गया. ओके, सेकेंड चेक ध्यान से समझना, और ध्यान से समझना. समझ में आया तो खुश हो जाना, और नहीं आया दुखी मत होना, बिकॉज कुछ नहीं बिगड़ने वाला. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बट हमें पता होना चाहिए. ओके, वी शुड, इट्स लाइक ए जनरल, इट्स लाइक जनरल नॉलेज. ओके, सो नाउ व्हेन यू टेक 131, अब इसका अप्रोक्सीमेट रूट अगर निकालोगे, अप्रोक्सीमेट रूट, ओके, क्लोजेस्ट रूट या इंटीजर फॉर्म में, जैसे अगर आप देखोगे 11 स्क्वायर कितना होगा? 11 स्क्वायर इज 121, है ना? होमवर्क, होमवर्क याद किया होमवर्क? टेबल स्टिल 20, स्क्वायर स्टिल 25, क्यूब स्टिल 10 एंड 2 टू द पावर 1 से लेके 2 टू द पावर 10 के वैल्यूज हमें याद होना चाहिए. बहुत बेसिक छोटा होमवर्क है यार, ये याद रख के चलना, लाइफ बहुत आसान रहेगी. ओके, सो 131 का स्क्वायर रूट निकाला, अप्रोक्सीमेट क्या होगा? एज आई सेड, 11 का स्क्वायर कितना होगा? 11 स्क्वायर इज 121. अच्छा बताओ, 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144. सो क्लोजेस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 131 विच इज लेस देन, थोड़ा छोटा हो, मतलब हम लोग यहाँ तक नहीं जाएंगे, यहाँ तक रहेंगे 121 तक. तो 121 किसका स्क्वायर है? 11 का. तो उसका 131 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 11 पॉइंट समथिंग. ओके, now what you will do is you will take 131 and see all the prime number from 1 to 11. 1 to 11 prime numbers कितने में बोलो? एक तो 2,
3, 5, 7, 11, right? Is 131 divisible by either one of them? Tell me. Is 131 divisible by either one of them? इनमें से किसी से भी 131 divisible है क्या? ये जो हमने प्राइम नंबर्स निकाले 1 से लेके 11 तक, इनमें से किसी से भी 131 डिविजिबल है क्या? 2 से तो डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट एन इवन नंबर। 3 से नहीं हो सकता, बिकॉज सम इज नॉट डिविजिबल बाय 5 और डिविजिबल बाय 3। 5 से नहीं होगा, बिकॉज 5 से डिविजिबल अगर कोई नंबर है, सो इट ऑलवेज एंड विथ आइदर 0 और 5। ओके, देखो हमेशा ये ध्यान रखना, whenever you are doing a concept lecture with me, हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा समझते चलना। 100% समझ में आए ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज अब जैसे मैं जो डिविजिबिलिटी बता रहा हूँ, सो वी आर गोइंग टू डू डिविजिबिलिटी रूल इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो बहुत स्ट्रेस नहीं लेना। क्या यू वांट, यू कैन डिवाइड दिस डायरेक्टली। 131 को 2 से डिवाइड करो, इट्स नॉट डिविजिबल। 3 से डिवाइड करो, नॉट डिविजिबल। 5 से डिवाइड करो, नॉट डिविजिबल। 7 से ट्राई करो, 7 1 जा 7, अब कितना बचेगा वहाँ पे? यू गेट 6, 61। सो इज 61 मतलब बेसिकली 131 डिविजिबल बाय 7? नो। 11 से है क्या? नो। सो व्हाट डज इट मीन? दिस 131 passes both the checks. Okay, so we can say 131 is a prime number. Okay, did you understand? How do you get to prove, or how do you, how can you say that, how can you find whether a given number is a prime number or not? तो आपके पास दो चेक है। पहला चेक कौन सा? तो उसको 6 से डिवाइड करो और चेक करो कि क्या वो रिमाइंडर 1 दे रहा है या फिर 5 दे रहा है। अगर इनमें से कुछ भी रिमाइंडर है, फर्स्ट चेक क्लियर। सेकेंड चेक क्या? उसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट लो, विच इज इंटीजर फॉर्म में लेना। ओके, और 1 से लेके वहां तक के जितने प्राइम नंबर्स है उनको कंसीडर करो और उन सब से डिवाइड करो वन गिवन नंबर को, और देखो इनमें से किसी से भी डिविजिबल है, देन इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर किसी से भी डिविजिबल नहीं है, देन इट इज अ प्राइम नंबर। ओके, डिविजिबल नहीं है तो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन नहीं बोलना। अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ और वन। एक्सेप्शन कौन है? 1। Okay, so if it is not divisible by either one of them, then it is what? A prime number. अगर मान लो अगर ये 7 से डिविजिबल हो जाता, मान लो 7 से डिविजिबल हो जाता, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 1, 131 एंड अनदर नंबर। तो प्राइम नंबर नहीं रह जाता, उसको प्राइम नंबर के ग्रुप से बाहर कर दिया जाता, बाहर उसको देश निकाला दे दिया जाता है। या क्लियर है? ठीक है, ऐसा तो चेक लगा सकते हो आपको। सो यू डोंट हैव टू, कभी कभी क्या होता है व्हेन पीपल ट्राई, कुछ लोगों, आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स, they don't know this rule, so what they do is they try dividing by all the numbers from 1 से लेके 131 जितने प्राइम नंबर्स हैं। जरूरत नहीं, आप उसका स्क्वायर रूट लो, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट लो, वहां तक के प्राइम नंबर से डिवाइड करो। अगर डिविजिबल नहीं है तो प्राइम है, अगर डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर की कैटेगरी से बाहर चला जाएगा। क्लियर? ग्रेट। सो दैट इज प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर आपको अच्छे समझ में आया। अभी एक और कॉन्सेप्ट अपने पास है, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑफ टुडेज लेक्चर। बी हैप्पी, बी हैप्पी। लास्ट कॉन्सेप्ट, बी हैप्पी। ओके, सो द लास्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट? को प्राइम नंबर। ये भी कभी कभार ऐसा भूले भटके कुछ तो ऐसा आ जाता है, बिकॉज सी, ये नंबर क्लासिफिकेशन का जितने भी कॉन्सेप्ट बताए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता। वी यूज देम समवेयर फॉर शॉर्टकट। सो ये एज जनरल नॉलेज ऑफ क्वांट हमें पता होना चाहिए। ओके, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच, जिनका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एक ही बात है, दोनों एक बात है। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो? 1। कितना हो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना हो? 1। ओके, सो 1। तो हम लोग क्या बोलेंगे? दीज नंबर्स आर रिलेटिवली को प्राइम। ये आप एक दूसरे के लिए को प्राइम नंबर है। ये एक दूसरे के लिए को प्राइम नंबर है। आई होप दैट्स क्लियर। ये एक दूसरे के लिए को प्राइम नंबर है। सो अ नंबर इटसेल्फ कैन नॉट बी अ को प्राइम नंबर, इट हैज टू बी विथ रिस्पेक्ट टू अदर नंबर। इट हैज टू बी विथ रिस्पेक्ट टू अदर नंबर। ओके, सो एग्जाम्पल के लिए नाउ
एक और चीज़ आराम से चलते हैं। कुछ ज़्यादा फास्ट चल रहा हो क्या? नहीं ना? ऑल गुड? अरे चल रहा हूँ तो कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, स्पीड को कम कर दो। ओके? नाउ व्हेन यू से को प्राइम नंबर, यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन क्या होता है, जनरल कंफ्यूजन क्या है कि सिर्फ को प्राइम, सो आर दे टॉकिंग अबाउट प्राइम? को प्राइम और प्राइम इनका कोई रिलेशन नहीं। ओके? कुछ इनसे लेना देना नहीं, मतलब इनडायरेक्टली ऐसा कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर, कजिन के कजिन का कजिन निकाल लो तो बात अलग है, बट डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं। ओके? सो को प्राइम नंबर्स आर नंबर्स वेयर HCF इज 1। सो इट नॉट नेसेसरी दैट द नंबर्स आर प्राइम। नंबर्स कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे 16 है, 25 है, दे आर नॉट प्राइम नंबर। बोलो 16 प्राइम नंबर है क्या? यस और नो? नो, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। 25 प्राइम नंबर है क्या? यस और नो? नो, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। ये कंपोजिट है, बिकॉज ये 25 5 से डिविजिबल भी है, 16 8 से डिविजिबल भी है, राइट? सो दे आर नॉट प्राइम नंबर्स। लेकिन ये एक दूसरे के लिए को प्राइम है, कैसे? बिकॉज इफ आई फाइंड देयर एलसी सॉरी HCF, HCF क्या होता है? ऐसा नंबर जो इन दोनों को कॉमनली डिवाइड कर सके। एक कॉमन नंबर विच डिवाइड 16 एंड 25 बोथ ऑफ देम। 1 के अलावा और कुछ है क्या? समथिंग विच डिवाइड 16 एंड 25? नॉट देयर। सो हम लोग इस केस में क्या बोलेंगे? HCF इज 1. 1 is the only number which can divide 16 and 25. There is no other number. In such case, 16 and 25 are co-prime to each other. ठीक है? अगर आप बोलो नहीं सर, आप एक बार बताओ, आप 25 तो बोल दिया, अब इसके साथ 35 लिया, आप तो अरे, do you have any other number than 25 and 35 which can divide both of them? A common number which can divide both of them? Yes, 5 is a common number which can divide both of them. तो हम लोग क्या बोलेंगे? They are not a prime, not a co-prime number. ये co-prime नहीं है। And they are co-prime number. They are co-prime number. ये co-prime क्यों है? Because इनका HCF कितना है? 1. Got it? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जिस स्पीड से और जिस डेडिकेशन से पढ़ रहे हो ना, I truly admire that. Truly admire that. चलो कुछ क्वेश्चंस बनाए, इसको ट्राई करते हैं। लेट्स सी हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड। आई वांट यू टू पॉज दिस वीडियो, लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 एंड ट्राई आंसरिंग बाय योरसेल्फ, और फिर मैच करो हम लोग का आंसर सेम है क्या। ओके? सो क्वेश्चन नंबर 1, इफ P and Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2, which of the following must be true? Which of the following must be true? If Q and R are distinct prime numbers greater than 2, ये प्राइम अलग अलग प्राइम नंबर है विच आर मोर देन 2, which of the following must be true? P plus Q must be true। देखो, मे बी ट्रू नहीं, मस्ट बी ट्रू, होना ही चाहिए ट्रू। कैन वी से P plus Q are also prime? एक बात बताओ यार, इफ P and Q are more than 2, सो बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स है वो ऑड प्राइम नंबर्स है, ऑड नंबर्स है, राइट? Apart from 2, 2 is the only even prime number. Apart from that, you will get every other number, other prime number, odd numbers, right? तो बोलो हमने odd and even के बारे में क्या सीखा? If you say odd plus odd, it's going to give you what? Even. Odd plus odd, it's going to give you what? Even. If it is going to give you even, अगर ये even देगा, अगर ये even देगा, तो भाई even numbers तो 2 से divisible है ना, सो क्या हम उसको प्राइम बोल सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। हम ये पाप कभी नहीं करेंगे। यस, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। P प्लस क्यू इज इवन। अरे अभी तो डिस्कस किया है, ये पे 2 के अलावा और कुछ दिया तो ऑड नंबर ही बनने। ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा? इवन। यस, इट मस्ट बी एन इवन नंबर। P प्लस क्यू मस्ट बी एन इवन नंबर। P इंटू क्यू, मैं क्या ही बोलूं। इफ P इंटू क्यू इसको एज वन नंबर देखें तो ये तो P से डिविजिबल है ना, ये तो उसके अलावा किसी और से डिविजिबल है। ये नंबर तो P इंटू क्यू है, ये तो Q से भी डिविजिबल है, right? So a number to be a prime number, it should not be divisible by any other number than itself and 1. So P into Q being one number, ये ऐसा नहीं है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। आप बोलो सर दूसरे ऑप्शंस क्यों देख रहे हो, एक आ गया तो। अरे कर लो यार, कर लो, समझ लो, समझ लो। P माइनस क्यू अ प्राइम नंबर, बात वही है।
ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है और ऑड माइनस ऑड भी क्या होता है, इवन होता है. इन दैट केस विल से व्हाट, इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा. सो p माइनस क्यू भी इवन प्राइम नंबर नहीं हो सकता. गॉट इट? सोचना इस बारे में फिर से. Okay, now let's look at another example. Now here we have two numbers A and B are co-prime. Co-prime है वो. Co-prime मतलब उनका HCF क्या होगा? 1. Okay. Now, which of the following must always be true? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग. एक नया प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा. हालांकि आई एम गोइंग टू कवर दैट प्रॉपर्टी इन HCF LCM. मैं बता देता हूँ क्या प्रॉपर्टी कवर करने वाला हूँ मैं यहाँ पे. ये आया आया. हम्म 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 आया आया, किधर आया किधर आया किधर आया, अरे कहाँ गायब हो गया, अरे आया आया आया, यस, ये प्रॉपर्टी कवर करने वाला हूँ. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF एंड LCM. देखो यहाँ पे कवर करो. हालांकि वो HCF LCM टॉपिक में लेक्चर में फिर से करेंगे हम लोग. नाउ हियर, इफ टू नंबर्स A एंड B आर को प्राइम, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? A प्लस बी इज प्राइम, कुछ नहीं बोल सकते इसमें, मतलब क्या ही बोले, मस्ट बी ट्रू में तो बिल्कुल नहीं बोल सकते. ए बी एंड A प्लस बी आर ऑल्सो को प्राइम, ये कैसे बोल सकते? ये कैसे बोल सकते? नॉट नॉट नेसेसरी. A इंटू बी एंड A प्लस बी. और आप बोलोगे सर हो भी सकता है, चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो यार, बाकी का ऑप्शन देख लो. एलसीएम ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A इंटू बी. अब A इंटू बी कौन हो गया बोलो? A इंटू बी कौन हो गया? प्रोडक्ट. A इंटू बी क्या हो गया? प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ का रिलेशन है यहाँ पे, एलसीएम ऑफ A एंड B इंटू HCF ऑफ A एंड B. अब ये अगर को प्राइम है तो HCF तो कितना हो गया? 1. LCM कितना होगा? LCM कितना होगा? जो भी होगा इनका LCM विल बी प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, मतलब वो A इंटू बी होगा. सो LCM ऑफ A एंड B इक्वल टू A इंटू बी. यही ऑप्शन नंबर 3 है ना. नाउ फोर्थ ऑप्शन, A एंड B बोथ आर प्राइम. नॉट नेसेसरी, हमने पहले ही देखा को प्राइम में, को प्राइम प्राइम उनका कोई ज्यादा रिलेशन है नहीं, डायरेक्ट रिलेशन है नहीं. सो वी कांट से दिस. सो ऑप्शन नंबर 3 इज वर्किंग बेस्ट. ओके. ऑप्शन नंबर 2, देयर मस्ट बी सम एग्जांपल, देयर मस्ट बी सम एक्सेप्शंस. जो देयर मस्ट बी सम सेट ऑफ नंबर्स व्हिच विल satisfy ऑप्शन satisfies in the not satisfy, उल्टा बोल रहा हूँ मैं. not satisfy, it's not correct. A into B and A plus B are co-prime, not necessary. If you find it's not necessary, आप कुछ इसमें नंबर्स लेके देख सकते हो. ये 16 और इसका भी एग्जांपल ले सकते हो आप. 16 और 25 का इसमें तो हो जाएगा, बट दे मस्ट बी सम अदर को प्राइम नंबर्स जहाँ पे ये फिट ना बैठे. ओके. सो सेकंड के लिए बहुत कंपल्सरीली नहीं बोल सकते, थर्ड के लिए बोल सकते हैं. राइट? ओके. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. नेक्स्ट, if P is a prime number such that P plus Q, such that P plus, sorry, P is a prime number where P plus 10 is also a prime number, which of the following is correct? लगा के देख लो ऑप्शन. if P equal to 2, बताओ 2 plus 10 ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं है. P is an odd number, कंपल्सरी है क्या? Not necessary. if P is a prime number and this is also a prime number, ये odd होगा. Must be 2 is also an odd number. Odd number. Must be an odd number. ये odd number तो होगा, बट ये हमेशा हो ऐसा कंपल्सन नहीं है. It will not work for every odd number. Like if I say a prime number, P being a prime number, let's say 5. So 5 is an odd number. But if you say, if you look at this, 5 plus 10 is giving you what? 15. 15 is not a prime number. So P को अगर odd लिया, एक एग्जाम्पल पकड़ा जो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नॉट नेसेसरी वो सेकंड नंबर, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करे. और हमारा कीवर्ड यहाँ पे क्या है? हमारा यहाँ पे मूल मंत्र क्या है? तम यहाँ पे कीवर्ड क्या है? मस्ट बी. वो होना ही चाहिए. मे बी वाला कंडीशन नहीं कि एक आध एग्जाम्पल काम कर गया, ऐसा नहीं. व्हेन इट इज मस्ट बी तो वो हमेशा उस केस में ट्रू हो. ओके. तो ये मस्ट बी नहीं. सेकंड, P इज मल्टीपल ऑफ 3.
P is multiple of 3. अरे multiple of 3 अगर है P a prime number multiple of 3, तो वो तो P फिर रही, मतलब वो प्राइम बचेगा ही कैसे? मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 और 6, बाकी के जो मल्टीपल ऑफ 3 दे आर डिविजिबल बाय 3, सो हाउ कैन दे बी अ प्राइम नंबर? 4 says P equal to 3. P equal to 3 fits the best. P equal to 3 fits the best. Okay? हालांकि आप बोलोगे सर ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला तो ऑलमोस्ट सेम ही मीनिंग करता है। अगर हम P को प्राइम अगर नंबर रखें और मल्टीपल ऑफ 3 लेके लें, तो ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल हो और वो प्राइम भी हो, वो तो 3 ही हुआ। सो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो बहुत क्लोज है। या ट्रू, ये मैंने कुछ ऑप्शंस बनाए हैं। अब इसके हिसाब से बेस्ट फिट जो है वो P इक्वल टू 3 है। बेस्ट फिट जो है वो P इक्वल टू 3 है। ओके, P इज अ प्राइम नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ये भी 3 को ही रिप्रेजेंट करेगा। P इज अ प्राइम नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ये भी 3 को ही रिप्रेजेंट करेगा टू सेटिस्फाई। ओके, बट बेस्ट इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन या बेस्ट number, best option which can hit all the given condition true is P equal to 3. Okay, so because if P equal to 3, then 3 plus 10 become how much? 13. So 13 is also a prime number. So P equal to 3, 3 is a prime number. 3 plus 10, 13 is also prime number. So this option satisfying ये और ये directly, ये and I mean P is prime and P plus 10 is also prime directly. इसमें कुछ indirect वाला relation है ही नहीं। ओके, सो बेस्ट फिट आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बनना चाहिए। ओके, ये मैंने आप कुछ कुछ इनके तो जोड़ तोड़ मरोड़ के कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, जस्ट टू बी क्लोज टू द कॉन्सेप्ट, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ये ऑप्शंस क्वेश्चंस मैंने ड्राफ्ट किए। आई रिपीट माई सेल्फ, नंबर क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बट ये सुन के आप इसको स्किप मत करना बिकॉज इनडायरेक्ट आते हैं। एज अ सो नंबर ऑफ प्राइम, जो मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द क्वेश्चन वाज देयर where question was like find number of 4-digit numbers which alternate digits are same and here has exactly 4 distinct factors, has exactly 4 distinct factors, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। वो हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स में सॉल्व करेंगे, ये इधर ये फैक्टर्स वाले चैप्टर में सॉल्व करेंगे। बट देयर वाज अ यूज ऑफ प्राइम नंबर्स। या सो कब इनका यूज हो जाए हमें पता नहीं। इवन नंबर और ऑड नंबर का तो मैं बहुत यूज करता हूँ टू सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग शॉर्टकट और इन लेस टाइम। आई यूज इवन नंबर एंड ऑड नंबर रिलेशन अलॉट, देयर ऑपरेशंस अलॉट। सो इवन नंबर ऑड नंबर के ऑपरेशंस तो यू शुड हैव गुड ग्रिप ऑन इट। ऑलराइट, सो दिस इज इट। कट कट कट, continue. So this is it in today's lecture. My name is Shyam Manawat signing off. I will see you in the next lecture. Next lecture होने वाला है divisibility rule पे. So do not skip. So फिर से कट फिर से बोलता हूँ ये. So this is it in today's lecture. My name is Shyam Manawat signing off. I will see you in the next video. Next lecture होने वाला है divisibility. फंबल फिर से. So this is it in today's lecture. My name is Shyam Manawat. I will see you in the next lecture. Next lecture होने वाला है divisibility rule पे. Divisibility rule पे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट we use it in indirect way in many questions. So it's very important concept. Do not skip it. Stay consistent the way you are till date. I will see you in the next lecture, next video. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Bye bye.